आप लेहो तुम कथा सिधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लेहो तुम कथा सिधारी। परम सन्मान जोग चवर छतर तख्त दे मालिक गुरता गद्दी उपर सुभाईमान वालिए कुल आलम शाहे शहनशाह बादशाहां दे बादशाह हाजर नाजर सर्ब कला भरपूर दसां पातशाहियां जी दी आत्मक जोत धन धन साहिब शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा श्रीनगर नवी दिल्ली विखे संगति रूप दे विच जुड़ मिल के बैठी गुरु रूप गुरु सवारी खालसा रूप साध संगत जियो। अज समूह सिख कौम बड़ी शरदा और भावना दे नाल धन गुरु नानक देव महाराज जी दी तीजी जोत धन गुरु अमरदास महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े नू बड़ी शरदा और भावना दे नाल मना रही। आओ धन गुरु अमरदास महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े नू मुख रखदे होए कुछ इतिहासिक विचारां और धन गुरु अमरदास महाराज जी दी सिफतो सलाह ते ओदे नाल नाल गुरबाणी दा फलसफा गुरबाणी दा सिद्धांत गुरु दे आशे अनुसार दास ने आप जी दे समक्ष रखण दा निमाणा जा यतन करना है। आप भावना बनायो एकाग्रता बना के रखियो ते हिरदे दे विचों भिज के एक बार सारे गाओ। तेरी उपमा तोहे बानिया वै तेरी उपमा तोहे बानिया वै उपमा तोहे बानिया वै। वाह वाह भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बाणिया वै तेरी उपमा तोहे बाणिया वै उपमा तोहे बाणिया। तेरी उपमा तोहे बानिया वै तेरी उपमा तोहे बानिया वै उपमा। फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असीं गुरु साहिब जी दे जीवन नूं
ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਡਾਰੀ ਲੰਬੀ, ਭਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਡਾਨ ਉੱਚੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੱਪ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਕਵੀ ਜਨ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਉੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ,
जिथे धन गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा सी दोहिता बाणी का बोहिथा, जिथे धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा सी कि बेटा सहज रख, एक दिन तू इस पीढ़े ते आके बैठ जाना है। जिथे धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा सी कि एक दिन ये तत्ती तवी ते भी बैठेगा, वो जगह उसका नाम है चौबारा साहब। चौबारा साहब है उत्थे एक किली अज भी कंध दे विच लगी हुई है। इतिहास कहता 95 साल की आरबला है धन गुरु अमरदास महाराज जी की, ते 95 साल की उम्र दे विच भी धन गुरु अमरदास महाराज बिरध अवस्था दे विच भी किली का सहारा लैके जप करते हैं, तप करते हैं, सिमरन करते हैं, छड्डदे नहीं। तो मैं जो इतिहास असीं हुण प्रकाश दिहाड़े की मैं थोड़ी जी गल करा, एक बाणी का बचन आउंदा है, कहंदे सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पै हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। कहंदे ओ धरती सोबनीक जिस धरती ते आके मेरा गुरु बैठ गया, वो धरती पूजन योग होगी, नमस्कार करने वाली होगी जिस धरती ते आके गुरु ने चरण पा दिते। ते हरियावल का अर्थ हुंदा है गुरमुखो खेड़ा, खुशी, आनंद। ते आ तुसी बंजर बियाबान जमीन ते जाके वेख लियो कि उत्थे जाके खुशी मिलती है। पतझड़ दे रुखां दे विच जिथे रुख दे उपर कोई पत्ता ना होवे, फुल ना खिड़िया होवे, विरान बियाबान जंगल पिया होवे, उत्थे जाके वेखोगे तो कोई खुशी नहीं। पर जो खिड़े हुए फुल्लां 'च जाके बैठ जाओगे उत्थे एक खेड़ा अंदरों अपने आप महसूस होवेगा। हरियावल का अर्थ हुंदा है खुशी। ते आ जिहड़ा हिरदा है ना अंदर, आ धरती जिहड़ी अंदर है, माफ करियो जे ते ये बंजर है, इहदे अंदर कदे नाम की चिणग पई नहीं, ते इथों कित्थों आस करोगे इत्थे बीज का पुंगारा हो जावे। बंजर जमीन दे विच कदे बीज नहीं पुंगरदा जिहड़े किसानी नाल संबंध रखदे होणगे। इह धरती नूं भी अंदर हरिया भरिया करना पैना। ते गुरु पातशाह कहंदे ओ धरती सोबनीक जिस धरती ते गुरु जाके बैठ जावे, मैं कहना वो हिरदा पावन पवित्र पूजन योग जिस हिरदे दे विचों धन गुरु अमरदास महाराज जी की सिफत सलाहत हुंदी हो। मैं इहदी व्याख्या अगे सवैयां दे विच करांगा। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पै हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, भले कुल दे विच धन गुरु अमरदास महाराज जी दा प्रकाश हुंदा है। ते भले नहीं कहना, कई इहनूं भले कह दिंदे ने, भला है, भला बरादरी। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आए, भट्ट साहिबाना ने भी कह दिया। कहंदे ओ धरती सोबनीक, ओ मां प्यो धनवंता दे जोग, जिस मां ने जिस पिता दे घर दे विच गुरु दा प्रकाश हो रहा है। पिता तेज भान, माता सुलखणी जी दी पाक पवित्र ओ कुख है। ते श्री अमृतसर साहिब जू दा इलाका बासर के, जो अमृतसर किते जाओगे उदों थोड़ा जिहा छाटा साहब तो 5-6 किलोमीटर का रकबा बनता है। दूजी साइड ते बाबा बुढ़ा साहब वाले रस्ते नूं जाने आ, विचों एक सड़क जाती है, उत्थे धन गुरु अमरदास महाराज बासर के प्रकाश धारदे ने। ते गुरु दा हमेशा प्रकाश हुंदा है, जन्म नहीं हुंदा, क्योंकि गुरु एक लाइट है, गुरु एक जोत है। वो जोत अज भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच शब्द रूप दे विच विराजमान है। जिहदा जन्म होया है उहदी डैथ भी होएगी। इस करके मैं कई बार चलो दिल्ली तकरीबन बड़ा चिर हो गया विचरदियां, लाइव भी हाज़री भरदे तहसीलगंज साहब, आम संगतां कोलों सुनीदा है। शरधा भावना बड़ी है, मैं ये कोई तर्क नहीं कर रहा, पर असीं आम जन बोली दे विच, पढ़े लिखे बोली दे विच असीं कह दिंदे अज गुरु जी का बर्थडे सैलीब्रेट कर रहे हैं। सिखो बर्थडे आम लोगों के मनाए जाते हैं,
जन्म आम लोगों के मनाए जाते हैं, गुरु का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता है। प्रकाश का अर्थ होंदा लाइट। वो लाइट किते इस हिरदे दे विच जग पवे, जिन्हों पानी ने कहा मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। आ हिरदे दे विच किते लाइट का वो प्रकाश हो जाए। आ जिहड़ी जमीन अंदर हिरदे की बंजर साडी पई रहिंदी, तेज भाण पिता ने माता सुलखणी जी की कुख है ते बासर के दी धरती है। 5 मई 1479 ईस्वी दे विच 1479 धन गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश हुंदा है। ते धन गुरु नानक देव महाराज जी तो तकरीबन 10 साल छोटे सन। पूरी आर बला 95 साल धन गुरु अमरदास महाराज जी ने भोगी है। कि जो तुसीं 10 गुरु साहिबाना के जीवन ते झात मारोगे तो सब तो लमेरी उम्र धन गुरु अमरदास महाराज जी की हुई। ते खासियत यह है कि 62 साल की उम्र दे विच धन गुरु अमरदास महाराज अपने भरा दे पुत्र दे नाल व्याही हुई बीबी अमरो जी दे मुख तो शब्द सुनते हैं। तो 62 साल की उम्र दे विच शब्द सुन के गुरु धारण करते। 72 साल की उम्र दे विच फिर मैं थोड़ा जिहा लड़ीवार आरंभ करांगा। मैं थोड़ा जिहा जीवन ते एक पंछी चाहत। 72 साल की उम्र दे विच धन गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी हासिल करते हैं, गुरता गद्दी ते बैठते हैं। 72 साल की उम्र दे विच 12 साल धन गुरु अमरदास महाराज गागर ढोंदे ने। खडूर साहब की धरती तो अज जे मैं वह फासला तय करा तो तकरीबन 10 किलोमीटर का रकबा बनता है। 10 किलोमीटर का फासला बनता है, जिहड़ा कि दास दा नगर है। खडूर साहब तो गोविंदवाल साहब की धरती ते निता प्रति एक दिन नागा नहीं, एक दिन छुट्टी नहीं। असी 2 दिन नितनेम कर लिए, 2 दिन सिमरन कर लिए, 2 दिन भांडे मार लिए, कह देने बोलो बथेरी सेवा कर ली है, रोज रोज भी की करना। एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज जी ने छुट्टी नहीं की। 12 साल गागर ढोई ते धन गुरु अंगद देव महाराज जी का इशनान करवाया। जल उत्थे भी हैगा सी, पर एक नेम सी, एक नियम सी। धन गुरु अमरदास महाराज ब्यासे की धरती तो गागर लैके आउंदे। मैं तां बेनती की शुरू दे विच एक ते रूहानीयत ते एक सेवा की कमाई। ते सच करके जानियो कला सिमरन भी हंकार का रूप धारण कर जाएगा। ਉਹਦੇ नाल सेवा होगी तो निमरता लैके आएगी, क्योंकि सेवा निमाणापन अंदर लैके आती। सेवा निमरता बख्शदी है। आ मैं जी सिंपल जी गल आप करिए, आ गुरु घर दे विच आउंदे आ ते असीं बर्तन मांजदे आ ना जी, असीं बर्तन मांजदे आ बिना किसी लाजपत दे शर्म हया दे असीं बर्तन मांजदे। पर जेकर कोई सानू कदे उदां कोई कहे कि फड़ मेरे जूठे बर्तन धो, अगला कहता मैं तेरा नौकर लगा है। ये गुरु घर दे विच आके निमरता आ जाती, सहज आ जाता है, सबर आ जाता है। ते सेवा वो प्रवान है जे धन गुरु अमरदास महाराज वर्गी होवे, जिहदे विच मांगी कोई नहीं सी, मांगी कोई नहीं। मैं जो आ सेवा की गल करते हाँ तो मैनू कई बार गल याद आ जाती। असीं कहने कि परमात्मा ऐ गुरु पातशाह तेरे घर ते इन्नी सेवा करांगा, मेरे झोली दे विच आ मुराद पा दे। असीं सुखदे हाँ। चलो मैं नहीं कहता गुरु कोलों मंगना चाहिए, पर एक गल याद रखियो, गुरु दे नाल कदे भी सौदेबाजी नहीं करी थी। एक तरह का सौदा हो जाता है कि मैनू तू आ दे दे ते मैं उहदे बदले आ करांगा। जिस दिन धन गुरु अमरदास महाराज आउंदे ने कोई सौदा नहीं किया, कोई मंग नहीं रखी। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने 12 साल एक सेवा की भावना लैके धन गुरु अमरदास महाराज जी ने गागर ढोई। चलो सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पै हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। धन गुरु अमरदास महाराज वो शख्सियत है जिहड़ी 95 साल की उम्र दे विच भी बंदगी करते पे ने, सिमरन करते पे। आप तरिया
जिन्हें डिठा तिना लए छडाए। कहते जिन्हों ने दर्शन किए वो तर गए, उन्होंने जन्म मरण कटिया गया। चलो मैं थोड़ा जिहा हुण जीवन ते आवां। आप जी नूं पता होवेगा जो तुसीं इतिहास पढ़दे ते धन गुरु अमरदास महाराज गंगा दे इशनान करन जाया करदे सी। नागा नहीं पाया। एक बाणी का बचन आउंदा है, मैं इत्थे इशनानां दी कोई विरोधता नहीं, मैं कदे भी कंडैम नहीं करदा। जिन्नी गल करांगा गुरबाणी विचों करांगा। तुसीं इशनान करन जांदे हो गुरु रामदास महाराज दे घर दे विच, मैं भी जाना, असीं सारे जांदे। पर एक बचन धन गुरु नानक देव महाराज जी का हिरदे च वसा के जाया करो कि तीर्थ नावां जे तिस भावां विण भाणे के नहाए करी। इनू शब्द नूं नहाए पढ़ना, कई इनू नहाए कह दे, नहाए नहीं, तीर्थ नावां। जदों भी तीर्थ दे नाल शब्द नहाउण दे अर्थां दे विच होवेगा, नन्ना भारा करके बोलना, तीर्थ नावां। ऐ परमात्मा मैं तेरे दर ते तीर्थां दा इशनान करदा है, मैल लाउण वास्ते आउंदा। पर नहाता होया प्रवान फिर हुंदा है जेकर तैनूं भा जावे। जे ते दुनिया नूं विखाउंदे पए हो, गुरु नूं चंगा नहीं लगा ते जिन्नियां मर्जी डुबकियां ला लिया, कोई फायदा नहीं। तीर्थ नहावां जे तिस भावां विण भाणै के नहाए करी। कहंदे बिना उस नूं भाउण तो तेरा नहाता होया किसी थाए नहीं पैना। एक बचन बाणी का होर आउंदा है, वो कहंदे नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। नहाउण गया है तीर्थां ते, मन खोटा है, मन दे विच खोट है, तन चोर है। ते माफ करियो गुरु घर दे विच आ के किते तन चोर नहीं हुंदा। ये अखां बड़ा कुछ चराउंदियां जे, ये कन बड़ा कुछ चराउंदे जे। गुरुद्वारे आके भी जबान निंदिया करनों नहीं हटदी ते कन सुणनों नहीं हटदे। गुरुद्वारे आके भी जबान चुगली करनों नहीं हटदी ते कन सुणनों नहीं हटदे। ये कंभगत कन इन्ने भैड़े ने, इन्हां नूं अपनी सिफतो सलाहत चंगी लगदी है, दूजे दी इन्हां नूं निंदिया चंगी लगदी। आ जीभ तो आ कन्नां राहीं बंदा कहंदा मेरी सिफत मैनूं सुणा, मेरे अवगुण ना मैनूं दस। हाँ, दूजे दे अवगुण मेरे कन्नां नूं दस, बड़ा रस आउंदा है, बड़ा आनंद बनदा है। जदों गुरु घर दे विच आईए ना, उदों सज्जा खब्बा नहीं वेखीदा हुंदा। मैं चलो ये नहीं, मैं कोई कंडैम नहीं करता। कई ते आके नुक्सी कड्ढी जांदे ने जी, आ नहीं ठीक जी, आ नहीं ठीक। जदों गुरु घर दे विच आईए उदों भौरे बन के आईदा, फुल तो रस लैण वास्ते आईदा, और नुक्स बिंदियां कड्ढण वास्ते नहीं आईदा। ठीक है, चलो मैनेजमेंट कमेटियां दा फर्ज है सलाह देनी उन्हां नूं, पर कईयां दा ते काम ही ये हो जांदा है। वो गुरुद्वारे दरवाजा एंट्री करन तो लैके परिक्रमा करन तक बस सज्जे खब्बे वेख रहे हैं कि नुक्स कित्थे कड्ढना है। माफ करो मैनू, ये साड़ी कई बार बिरती बन जाती है। धन गुरु अमरदास महाराज गंगा की यात्रा करन जाते हैं ते बड़ा अरसा हो गया, 62 साल लंघ गए। एक दिन एक साधु मिलिया, सहज सुभाव ने बचन किया। तुरे जाने कट्ठे जाते सी, मित्रता बन गई। एक दूजे दे नाल तुरन लग पे, दोनों जाने कट्ठे होके तुर पे। एक दिन रोटी पानी की सांझ करन लगे। तानू आप नू इतिहास का पता है, उस दिन उस साधु ने कहा कि तेरा गुरु कौन है। उत्थे गुरु अमरदास महाराज, अमरू नथावा सी जी नाम पहला। गुरु अमरदास महाराज कहते ने कि मैं तो कोई गुरु धारण नहीं किया। कहन लगा मेरा जीवन भ्रष्ट हो गया, मेरी इन्ना चिर कीती हुई कमाई, इन्ना चिर कीती हुई गंगा की यात्रा, ये सारी व्यर्थ चली गई। मैं तो निगुरे का संग कर लिया। इतिहास कहता गुरु अमरदास महाराज जी के अखां दे विचों नीर वहना शुरू होया। एक विछोड़े की अंदर चीज उठी। तो मैं कहना है सच करके जानियो, ये साडे अंदर भी भावना उठनी चाहिए है कि असी किते ना किते विछड़े हुए हैं, असी किते ना किते गुरु तो बेमुख होके तुरे फिरदे, असी गुरु धारण नहीं किया। माफ करियो, दो चीज़ां ने, एक तो बाणा पा लिया गुरु वाला। मैं तो कोई गुरेज नहीं जी, मैं तो सीधी गल कहना कि बाणा पा के गुरु वाले बन गए। सब तो पहला गुरु की विचार का धारण ही होना चाहिए है। जो गुरु की विचार आ जाएगी, बाणा अपने आप आ जाएगा। जे गुरु की विचार नहीं आई, बाणी नहीं आई,
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਮਣਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਨੌ ਬਣ ਕੇ। ਨੌ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ LCD ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਢਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ, ਬੰਦਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕਾਗਦ ਹੈ। ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਆਹੂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
जिन्हें तेनों मन दिता है, बुद्ध दिती है, अखां दित्तियां ने, पैर दिते ने, हथ दिते ने, जो तैनूं याद नहीं करता तेरे गुण दिनों दिन सड़ते पे ने। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये शब्द सुनिया, कहते गुण ते सारे सड़के सुवाह हो गए, जप तप ते खत्म हो गया, सेवा सहज सबर ते खत्म हो गया। हुण अंदर की है? हंकार है, ईर्खा है, लोभ है, द्वेष है। ये अंदर लालच रूपी कुत्ता भौंकदा है परमात्मा की बंदगी तो बिना, जिहड़ा भरा नूं भी कट्टण तो गुरेज नहीं करदा। धन गुरु अमरदास महाराज शब्द सुनते ते नैणा दे विचों नीर वहना शुरू हुंदा है। ते अगे जिहड़ा शब्द सुनिया, कहंदे जाली रैण जाल दिन हुआ। कहंदे आ बंदगी तो बिना बंदिया तू जिन्ने भी दिन गुजारदा पिया है, ये जाल दा काम करदे पए ने। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। जिस काल पुरख दा चिंतन नहीं ते जिन्नियां घड़ियां गुजारदा पिया है, तेरे गल दे विच फाहियां बन बन के पैंदियां पईयां। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे। गुरु अमरदास महाराज सुनते ने शब्द ते नाल नाल समझ आउंदी जांदी। कहंदे तू रस लै लै के आ दुनिया दे चोग तमाशियां दे चोग चुगदा है, ते रस लै लै के चोग चुगदा है। उन्हां रसां कसां दे विच इन्ना ज़्यादा फस जाना है कि सारी जिंदगी इन्हां रसां कसां दे विच ही निकल जाती है। रस रस चोग चुगे नित फासे। कि आ माया दे रस दे विच बंदा फसदा नहीं, ਧੀਆਂ पुत्रां दे रस दे विच बंदा फसदा नहीं। ठीक है जीवन गुजरान है, दास इत्थे स्टेज ते बैठा, ये गल सच है। साडी भी हालत उही, फसदे आपां तरह तरह दे रंग। आ अखां रस दे विच फसदियां नहीं, रूप दे रस दे विच। आ कन निंदिया दे रस दे विच फसदे नहीं, किते सुन लई चस्का है इन्हां नूं। अजीब 36 प्रकार दे रसां दे विच फसी पई है। रस रस चोग चुगे नित फासे। फिर कहते छूट समूड़े कवण गुणी। कहते ओ बेवकूफा मूर्खा, मूड़िया किहड़े गुणा दे नाल छुटेगा। फिर अगे कहते जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूट समूड़े कवण गुणी। काया आरण मन विच लोहण। तेरी हालत वेखी कदे की बन गई। कहते एक काया रूपी आरण है शरीर। आरण समझते हो ना, जिहड़ी सुनियारे कोल आरण हुंदी है वड्डी सारी, एक सिल लोहे दी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ थोड़े मार मार के सोने नूं ढालदा है। काया आरण मन विच लोहा। आ मन रूपी लोहा है। मन जलिया सन्नी चिंत पई। आ पाप कर करके रस लै लै के तेरा मन सड़ के सवाह हो गया। तू इन्ने पाप कर ले, हुण तेनू मखमली सेजां ते भी रात नूं नींद नहीं आउंदी। चिंता रूपी सन्नी ने तेनू पकड़िया होया। इन्ने पाप कर ले, मन जलिया सन्नी चिंत पई। फिर कहंदे ए मन सड़ के सवाह हो गया। पर एक शब्द मुड़ के अखीर ते गुरु पातशाह कहंदे कोयले पाप पड़े तिस उपर मन जलिया सन्नी चिंत पई। पापां रूपी कोले ओदे उपर पैंदे ने, सेक ते अगे नहीं सी झल्लिया जांदा। मन सड़ के सवाह हो गया ते चिंता रूपी सन्नी ने तेनू पकड़ लिया। फिर गुरु पातशाह दे एक शब्द फिर सुनिया गुरु अमरदास जी ने। पहलों तो नीवेपन च चले गए, तो फिर बाणी सिखो कदे भी नीवेपन च नहीं जान देंदी। बाणी डिगे हुए जीवन नूं चुकदी है, बाणी डिगे हुए बंदे नूं चुकदी है। कहंदे तू फिर की होया, गुनाह कीते ने, फिर की होया जे पाप कर लए ने। आ एक बेनती समझियो। कई बार कई बंदे कहंदे नहीं असीं ते बड़े पाप कीते ने, कित्थे बख्शे जावांगे। पर बाणी कहंदी है बंदिया गुरु दा हिरदा एडा विशाल है, भावें तू जिन्ने मर्जी पाप क्यों ना कीते होण, एक बार भावना दे नाल शरण दे विच आ जा, गुरु तेनू अपने सीने नाल ला लैंदा, तेनू डिगण नहीं दिंदा। परवाह ना करया करो जे पाप कीते ने, तू भावना बना के अरदास करो। फिर गुरु पातशाह कहंदे भया मनूर कंचन फिर होवे। ये तेरा जंगालिया होया मन सोहना हो सकता है, ये सुक्का होया हिरदा खिड़ सकता है जे गुर मिले तनेहा, जे किते गुरु मिल जावे। एक नाम अमृत मुख देवे तो नानक तृष्टस देहा। किते एक सवंती बूंद हिरदे दे विच पै जावे ते सुक्का होया हिरदा भी हरिया भरिया हो सकता है।
जंगालिया होया मन फिर सोने का रूप हो सकता है। गुरु अमरदास जी ने शब्द सुनिया, हिरदे नूं तरवास मिलिया ते आके बीबी अमरो जी दे अगे हथ जोड़ते ने ते कहंदे ने धीए ये बाणी किन्हां दी पढ़दी है, ये तो सारी मेरे जीवन ते लागू हुंदी है। ते लागू हुंदी है जी बाणी, बंदा मन्ने भावे ना मन्ने। कई बचन तो इदां दे ने जिवें आपां कहंदे ने ना, माफ कर मैं बचन कहण लगा कि किसी के मूँह ते चपेड़ मारनी। खसम विसारे ते कमजात नानक नामे बाज सुनात, किते दे अर्थ पढ़ के वेख्यो। कमजात आपां एक शब्द कहने आ कि तू कमजात है, ते बाणी दे विच गुरु पातशाह ने सीधा कह दिता, कहंदे जे परमात्मा नूं भुल गया ते तू कमजात है। बड़ा वड्डा वचन कह दिता। आ जिवें एक शब्द पढ़दे आ कि ना बिरां जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन पै पाए। जे मैं सीधा किसी नूं कहना होवे कि तू ते कुत्ते दी तरह झूठ दे विच मूँह मारदा तो गुस्सा कर जांदा अगला। पर गुरु पातशाह कहंदे जेकर बंदगी कोल नहीं तो बंदिया जिन्ने पकवान चकदा पिया समझ ला जिवें कुकर झूठ दे विच मूँह मारदा है, बस ओह हालत तेरी। बड़ा वड्डा वचन किया। धन गुरु अमरदास महाराज ने सुनिया, सुन के रिहा ना गया, आप चल के आए। बीबी अमरो जी नूं कहण लगे धीए बाणी किन्हां दी? कहण लगे धन गुरु नानक देव महाराज जी दी, जिन्हां दी गद्दी ते मेरे पिता धन गुरु अंगद देव महाराज विराजमान ने। कहंदे मैनूं लै चल उन्हां कोल, मैं उन्हां कोल जाना है। ते उदों बीबी अमरो जी कहंदे कि मैं इदां नहीं जा सकदी, मेरे पिता जी का अजे हुक्म नहीं होया सौरे परिवार पेके परिवार वालों कि मैं वापस मिलने वास्ते आवां। आ बड़ी वड्डी गल जी, एक सिक्ख्या जे। अज तो छोटी जी गल हुंदी मैं चले जी पेके। बीबी अमरो जी कहंदे ने मेरे पिता का हुक्म नहीं, मैं इस तरह बिना पुछे नहीं जा सकती। पर गुरु अमरदास जी ने तरला किया, बीबी अमरो जी लैके गए खडूर साहब की धरती ते आए। ते इतिहास कहंदा बाहरली ड्योड़ी ते धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं खड़िया कीता। हालांकि रिश्ते दे विच सहुरा सन ते तुहानूं शायद पता होवे जिस दिन विआहण आउंदे ने बीबी अमरो जी नूं, उस दिन धन गुरु अमरदास महाराज गुरु अंगद देव साहब जी नूं मिलदे ने। पर उस दिन मुंडे वाले पासों आउंदे ने, रोब दे नाल आउंदे ने कि असीं मुंडे वाले पासों आए हैं, विआह के लैके चले हैं। पर अज कोई रोब नहीं, अज कोई अंदर हंकार नहीं, अज सिर चुक के नहीं आए, अज सिर नीवा करके आए ने। जो लैण वास्ते कुछ आईए ना उदों हमेशा झुक के आईदा है। ते जिहड़ा टाण दे बूटे नूं जिहड़े बूटे नूं फल लग के पक जावे उहदियां टाहणियां झुक जांदियां ने। ते सिखो जदों गुरु घर दे विच झोली दे विच दात लैणी होवे उदों हमेशा झुक के आया करो, कदे हंकारी बन के ना आया करो। कदे भी गुरु घर दे विच आके अपना नां ना जताया करो कि मेरी बड़ी सेवा। अज गुरु अमरदास महाराज आए, बाहरी दरवाजे ते खड़े हो गए। बीबी अमरो जी कहंदे मैं पुछ के आउनी है। ते धन गुरु अंगद देव महाराज जी नूं जाके नमस्कार कीती। ते गुरु अंगद देव महाराज कहण लगे धीए जिन्हों नाल लैके आई आ उन्होंने बाहरली ड्योड़ी त्यों क्यों खिलार दिता, उन्होंने घर दे विच लै गया। धन गुरु अमरदास महाराज दे कन्नी आवाज पई, जानी जान गुरु अंदर दी जानदा। धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरनां ते जाके सीस नवाया गुरु अमरदास महाराज जी ने। ते उत्थे कोई आउंदियां कोई आदर मान वड्डा सारा नहीं दिता। गुरु अंगद देव महाराज नूं पता सी कि सेवादार बन के आए। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने हुक्म लाया सेवा करो, बंदगी करो। उत्थे फिर गुरु अमरदास महाराज 12 साल लगातार गागर ढोंदे। 62 साल उम्र है गुरु अमरदास महाराज जी की। जिस दिन धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे नाल मिलाप करते हैं ते 72 साल की उम्र तक लगातार धन गुरु अमरदास महाराज जी गागर ढोंदे ने। 12 साल सेवा करते हैं, 12 साल जप करते हैं, तप करते हैं। ते एक दिन गागर लियाउंदियां जो तुसीं जाओगे खडूर साहब, उत्थे अज भी जुलाहे की एक भट्ठी है। वो बूटा अज भी उत्थे उस तरह उन्होंने रखिया होया जात दे विच। गागर लियाउंदे लियाउंदे उस भट्ठी दे विच पैर पिया, डिगे ते जुलाहे की घरवाली ने क्या होना है अमरू निथावा, जिहदा कोई घर नहीं, जिहदी कोई थां नहीं। उदों गुरु अमरदास महाराज ने क्या चलिए कमलिए
हुण मैं निथावा नहीं, हुण ते मैं घर वाला हो गया। ते माफ़ करियो, जिन्नी देर असी गुरु धारण नहीं किया, समझ लो कि असी निथावे ही, असी घरे ही हाँ, साडा कोई घर नहीं। जिन्नी देर गुरु धारण नहीं किया, कदे सज्जे चले गए, किसी बेरिया नूं जाके धागे भी बंध लै, पुछना भी लै लई किसी पंडित कोलों, बड़ा कुछ असी करते हैं। पर जो गुरु धारण कर लिया, उदों गुरु दा सिख केवल ते केवल गुरु दा होके रह जाता है, सज्जे खब्बे किते नहीं भटकदा, वो जाता नहीं। धन गुरु अमरदास महाराज नूं लामा मारिया उन्हें, जुलाहे दी घरवाली ने। इतिहास कहता है कि जुलाहे दी घरवाली कमली हुंदी। धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने उस दिन गुरु अमरदास महाराज जी नूं डिग्गियां नूं चुकिया, इशनान करवाया, ते धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं फिर उत्थे 12 वर दिते हैं, निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, निधरियां दी धिर, बेधीरजां दे धीरज, गई बहोड़, बंदी छोड़, सर्ब कला समरथ, सबना सिर हथ। धन गुरु अमरदास महाराज नूं 12 वर दे के निवाजिया। कहण लगे, जिहड़े तुहानूं कहंदे ने कि तुहाडा कोई घर नहीं, तुहाडा एडा वड्डा घर होवेगा कि उस घर दे उपर आके लखां संगतां नमस्कार करया करनगियां ते शरण लिया करनगियां। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे घर दे विच, चलो मैं हुण बेनती करां, किड्डी वड्डी निगाह गुरु अमरदास महाराज जी दी। सवैयां दे विच एक बचन आउंदा है, ते निमरता वेखो किड्डी वड्डी है। जिस दिन 12 साल की सेवा करन तो बाद गुरता गद्दी ते बैठदे ने, इतिहास कहता बाबा दातू जी जेड़े धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे सपुत्र सन, जदों गद्दी उपर गुरु अमरदास महाराज बैठते ने, ते धन गुरु अमरदास महाराज जी दे पिठ दे विच बाबा दातू लत मारदा बड़ी जोर दे नाल, कि धन गुरु अमरदास महाराज तख्त तो हेठां डिग पैंदे। उत्थे हुण कोई गुस्सा नहीं किया गुरु अमरदास महाराज जी ने, उठ के कहंदे ने, गुरु पुत्र सन बाबा दातू जी, ते उठ के पैर फड़ के बाबे दातू दे कहंदे ने कि बाबा जी मेरियां हड्डियां बजुर्ग हो गईयां, बड़ियां सख्त ने, तुसीं अजे जवान हो, तुहाडे पैर बड़े कोमल ने, किते तुहाडे पैर नूं कोई चोट ते नहीं लगी। मैं ना एडा वड्डा निमाणापन, एडी वड्डी निमरता। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने जो ये शब्द कहे कि तुहाडे पैर बड़े कोमल ने, मेरियां हड्डियां बजुर्ग हो गईयां, बड़ियां सख्त हो गईयां, तुहानूं किते सट ते नहीं लगी। जो ये बचन कहे बाबे दातू दे अंदर नूं धो के रख दिता गुरु अमरदास महाराज दे बोलां ने। पर गुरु अमरदास महाराज जी ने वेखो, जो तुसीं इतिहास पढ़ोगे, कई बार असीं वेखदे हां कि जिस जगह ते गुरु साहिबान रहे, जिस जगह ते गुरता गद्दी मिली, उस जगह नूं गुरु ने छड्डिया तां है कि जिथे ईरखा आ जाएगी उथे कदे सेवा नहीं की जाएगी, जिथे द्वैश भावना आ जाएगी उथे तुसीं अपने मिशन दे विच कामयाब ही नहीं हो सकते। धन गुरु अंगद देव महाराज करतारपुर छड्डदे ने, क्योंकि उथे श्री चंद की विरोधता सी। धन गुरु अमरदास महाराज गोविंदवाल छड्ड के बासर के चले जाते हैं, क्योंकि बाबा दातू विरोध करता पिया। जिथे विरोधता है, जिथे ईरखा है, वो नगर वो घर गुरु साहब जी ने छड्ड दिता। तो सच गल है, माफ करियो, जे इस ईरखा नूं खत्म करना है अज भी, जिस झगड़े नूं निबेड़ना होवे ते एक पास्यों चुप कर जाइए, झगड़ा अपने आप निबड़ जाता है। जे ते बराबर की टक्कर लई जाओ फिर थोड़ा झगड़ा निबड़ता है। एक पासा चुप हो जावे, एक पासा वट जावे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारी जिंदगी अमृतसर नहीं गए, ईरखा सी उत्थे भी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वेख्या कि मेरे को अपने मिशन दे कामयाब नहीं होया जाना, नहीं गए उत्थे। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे लत वजदी है, तो गुरु अमरदास महाराज कहंदे मेरियां हड्डियां बड़ियां सख्त ने, तुहानूं दर्द तो नहीं होई, चोट तो नहीं लगी। धन गुरु अमरदास महाराज गुरता गड्डी ते बैठते हैं, ते सब तो
ये जिहड़ी बाणी आनंद साहब दी तुसीं पढ़दे हो, ये शब्द जिहड़ा पहला पढ़दे हो, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। कहंदे हुण खेड़ा बन गया, खुशी बन गई, मैं गुरु पा लिया, मैं गुरु नूं हासिल कर लिया। मैं इतिहासक पल तुहाडे सामने रखे ने, थोड़ी जी गुरबाणी दे विचों एक भट्ट साहिबाना दा सवैया आउंदा है जी। वो कहंदे ने चरण तां परस क्यथ चरण चले गुर अमर पवल रह। कहंदे ओ चरण भाग वाले सोभनीक जिहड़े चरण गुरु अमरदास महाराज दे घर वल नूं चल के जांदे। कोई ठेके वल नूं जांदा है, कोई शराबियां दी संगत वल नूं जांदा है, कोई सिनेमे घर वल नूं जांदा है, पर भट्ट साहिबान कहंदे ओ चरण सोभनीक जिहड़े चरण गुरु अमरदास महाराज दे घर दे विच चल के आउंदे। चरण तां परस क्यथ चरण चले गुर अमल पवल रह, हाथ तां परस क्यथ हाथ लगे गुर अमर पै, जी तां परस क्यथ जी गुर अमर भणिजै, नैण तां परस क्यथ नैण गुर अमर पखिजै, श्रवण तां परस क्यथ श्रवण गुर अमर सुनिजै, सक्यथ सोहियो जित ही बसै। ओ अखां सोभनीक जिहड़ी अखां धन गुरु अमरदास महाराज दे दर्शन करदियां ने, ओ कन सोभनीक जिहड़े कन गुरु अमरदास महाराज जी दी सिफत सलाहत सुनदे ने। ओ चरण सोभनीक जिहड़े गुरु अमरदास महाराज दे घर वल नूं जाउंदे ने। ते भट्ट साहिबान कहंदे ने सिखो ओ हिरदा सब तो ज्यादा सोभनीक जिस हिरदे दे विचों आवाज़ निकलदी होवे धन गुरु अमरदास महाराज, जिहड़े हिरदे दे विचों गुरु अमरदास जी नूं याद कीता जांदा होवे। धन सो ये हिरदा जिहड़ा है। चरण तां परस क्यथ चरण चले गुर अमर पवल रह, हाथ तां परस क्यथ हाथ लगे गुर अमर पै, जी तां परस क्यथ जी गुर अमर भणिजै, नैण तां परस क्यथ नैण गुर अमर पखिजै, श्रवण तां परस क्यथ श्रवण गुर अमर सुनिजै, सक्यथ सोहियो जित ही बसै, गुर अमरदास निज जगत पित, सक्यथ सो सिर जालप भणै, जो सिर निवै गुर अमर नित। ओ सिर सोभनीक जिहड़ा सिर गुरु अमरदास महाराज जी दे अगे आके झुक जांदा है। एक भट्ट साहिबान जी दा होर बचन आउंदा, कनहर बूंद बसो रमावल, कुसुम बसंत गनंत ना आवे। जो गुरु अमरदास महाराज सिफत सलाहत करनी होवे ना तो सवैये पढ़िया करो। जे गुरु अमरदास जी दे नाल गल्लां करनियां होण ते गुरु अमरदास महाराज जी दी बाणी आनंद साहब पढ़िया करो। हुण मैं गुरबाणी दा फलसफा जिहड़ा गुरु अमरदास महाराज जी दा कहंदे कनहर बूंद बसो रमावल, कुसुम बसंत गनंत ना आवे। कहंदे आ जिहड़ा बदल है, बदल दे विचों जदों बूंदां वरसदियां ने, कहंदे उस वरसदियां होईयां बूंदां दी कदे गिणती नहीं हो सकदी। आज जदों बनस्पति खिड़दी है, मौलदी है, बसंत दी रुੱਤ आउंदी है ते खिड़ी होई बनस्पति दे फुल्लां दी गिणती कदे नहीं हो सकदी। कनहर बूंद बसो रोमावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। कहंदे ए सूरज दे विचों निकलदियां होईयां किरणां दी कदे गिणती नहीं हो सकदी। चंद्रमा दे विचों निकलदियां होईयां किरणां दी कदे गिणती नहीं हो सकदी। ते नदी दे विचों उठदियां होईयां छल्लां दी, उठदियां होईयां तरंगां दी कदे गिणती नहीं हो सकदी। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै, कब जन भल उन्हें जो गावे। कहंदे पर जेकर कोई, मैं बचन कह रहा, जेकर कोई शिवजी वांगू ध्यान ला के बैठ जावे ते वो अपनी समर्था नूं इन्नियां वड्डियां कर लै के वो सूरज दियां किरणां भी गिण लवे। वो अपने आप नूं इन्ना वड्डा कर लवे कि वो नदी दे विच उठदियां होईयां तरंगां नूं भी गिण लवे। वो गिण सकदा है, सूरज दे विचों निकलियां होईयां किरणां दी गिणती कर सकदा है, पर गुरु अमरदास महाराज जी दे गुणां दी वो गिणती नहीं कर सकदा। भट्ट साहिबान कहंदे भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवे। तेरी उपमा नूं इन्हां जीभां दे राहीं बयान नहीं कीता जा सकदा, नहीं बयान कीता जा सकदा। एक शब्द आउंदा है, गुरु अमरदास परसिए पोह पातक बिनासे, गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक असासे, गुरु अमरदास परसिए ध्यान लईए पौ मुक्के,
गुरु अमरदास परसिए भौ लभे गौ चुकै, एक बिन दो गण जो तो रह, जास मंत्र मानवे लहै। कहंदे गुरु अमरदास महाराज दा ध्यान करन दे नाल पापां दा नाश हो जांदा है। गुरु अमरदास महाराज दा ध्यान धरन दे नाल जदों गुरु अमरदास जी दी किते निगाह सवली हो जावे ते कहंदे सच करके जाणियो इत्थे शरीर दे उपर वड्डे वड्डे रोगां दा भी नाश हो जांदा। एक बचन मैं कह के छोटी जी साखी समाप्ति कर देनी। लाहौर नगर दे विच एक सिख रहिंदा है जिहदा नां सी प्रेमा। लाहौर शहर दे विच एक पिंड सी खाई पिंड। उस खाई पिंड दा वसनीक सी प्यारिओ, ते छोटे जे हुंदियां मां प्यो चला गया। थोड़ा जा जवान होया ते शरीर नूं कोढ़ दा रोग लग गया। ते कई बार जदों मुसीबतां आउंदियां ने तां सारियां इक्के वार ही आ जांदियां ने। कोढ़ दा रोगी हो गया ते कोढ़ दा रोग बड़ा भयानक है। कोई नेड़े ना लगे, कोई इलाज ना करावे। पाटे पुराने जे कपड़े एक उन्हें गल दे विच ठूठा बन्निया और रस्सी पा के दूरों कोई रोटी सुट देवे, वो खा लवे, उहदे ठूठे च पा देवे, वो छक लिया करे। एक दिन किते संगतां जस गौनियां गौनियां गुरु अमरदास महाराज दे गोंदवाल साहब नूं जा रही हैं। उहदे कन्नां दे विच आवाज़ पई। रोगी सी, दुखियारा सी, ते इतिहास कहंदा पहिलां अमीर सी जी। ते जदों अमीर सी रज के ऐश प्रस्ती कीती, सब कुछ लुटिया गया, कोल कुछ ना रहा। जदों जेब भरी सी उदों सज्जन मित्र भी बड़े सी, जदों जेब खाली हो गई उदों मित्र भी कोई ना रहा। ते कई बार मित्र भी पैसे दे हुंदे ने। हरेक कहंदा अमीर दे नाल दोस्ती करां, गरीब नाल कौन दोस्ती करदा। दुनिया मुसीबत दे विच कोई नेड़े नहीं, ते सुखां दे विच मंजे दियां चारे बाहियां ते आके लोग बैठे हुंदे ने, असीं तेरे नाल। वो कल्ला रह गया, रोग लग गया, मां प्यो चला गया, रोंदा है, करलाउंदा है, कोई नेड़े ना टुके। एक दिन जथा धन गुरु अमरदास महाराज दे शब्द पढ़दा, बाणी गाउंदा गाउंदा गोंदवाल साहब दी धरती वल नूं आ रहा। कन्नी आवाज़ पई। उन्होंने कहा देख तेरा ये रोग मिट सकता है जे धन गुरु अमरदास महाराज दे घर दे विच चला जावे। तो साडे मन च भी शंका आउंदा है ना। उन्हें शंका कीता, कहंदा की उत्थे जाके रोग कट्टिया जावेगा। वो कोई गुरमुख बिरती वाले सी, अग्गेओं तोड़न वाले नहीं सी, जोड़न वाले सी। माफ करियो, अज जोड़न वाले घट, तोड़न वाले ज्यादा मिलते। वो कहंदा कट्टिया जावेगा। ये वो घर है जिस घर का मालिक दरवाजा खड़का के रोगी नूं, कोड़ी नूं कहंदा है कि मैं तेरा कोड़ दूर करने वास्ते आया, तू दरवाजा खोल। धन गुरु नानक देव महाराज कहंदा वो घर है। एक गुरमुख प्यारे ने इतिहास दे विच उहदा गधेड़े भी चुक्या, लै आ चुक के बड़ा वड्डा परोपकार उहदा। सामने आके बैठ गया गुरु अमरदास महाराज दे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन, महीना 2 महीने 3 महीने लंघ गए, समा बतीत होया, छड्ड के ना गया दोबारा। एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज ने कहड़ा सामने बैठा है, रोज प्रेम दे गुण गाउंदा है, इनू लैके आओ। जिस खूह दे विचों धन गुरु अमरदास महाराज इशनान करते सन, उस खूह दे विचों उस रोगी दा इशनान करवाया, उहदे उपर मेहर भरी निगाह कीती, ओदी देही कंचन वर्गी हो गई। ते फिर नाल ये बचन कहे, इनू सोहणे बस्तर पहनाओ। ते जदों सोहणे बस्तर पहना के कहण लगे, कहंदे तू ते लाड़े वांगू सज गया है, तू ते दुल्हा वांगू सज गया है। ते भरी संगत दे विच जिवें दवाहण लगा है ना, भरी संगत दे विच कहंदे हुण इहदे नाल कोई अपनी लड़की दा रिश्ता करे। इतिहास है, इहदे नाल कोई अपनी लड़की दा रिश्ता करे। ते धन गुरु अमरदास महाराज दी संगत दे विच एक सिख बैठा सी जिहदा नाम सी शीया उप्पल। वो उठिया, उन्हें हाथ जोड़ के कहा, उन्हें कहा जी मेरी धी जवान है, उहदा नाम है मत्थो, ते मैं उहदा रिश्ता इहदे नाल कर दिंदा। रिश्ता कीता। शीए उप्पल दी घरवाली नूं पता लगा।
उन्हें जाके कहा, उन्हें क्या हद हो गई, जिहड़ा कोड़ी सी, जिहदा मां प्यो कोई नहीं, जिहदा ये नहीं पता वो खावेगा की कमाएगा की, घर बाहर कोई नहीं, तो तुसी ओहदे नाल अपनी धी दा रिश्ता कर रहे हो, डोबनी है धी। यही हुंदा है ना साडा कि असीं वेखदे हां कि परिवार दी बैकग्राउंड की है, खावेगा की, पीवेगा की, कमाएगा की। मैं कहना सिखो सब कुछ वेख्या करो, अमीरी वेख्या करिए, पर नाल नाल रिश्ता करन वेले अगले दे गुण जरूर वेख्या करो कि करोड़ां रुपया खत्म करन वाला है, मकाउण वाला है कि करोड़ां नूं होर वधाउण वाला है। जे ते गुण वाले होवेगा वो कौडी तो भी करोड़ां कर लवेगा, ते जे औगणा दा भरिया होवेगा करोड़ां नूं भी कौडी दे विच बदल के रख देवेगा। इवें हो रहा है अजकल, असीं गुण वेखदे ही नहीं। धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं आके ओदी घरवाली ने कहा कि पातशाह जीओ तुसीं मेरी धी दा रिश्ता कर दिता, इहदा घर बाहर कोई नहीं, इहदा मां प्यो कोई नहीं, ते दसो ये की खाएगा की कमाएगा। ते गुरु अमरदास जी ने तरवास दिंदे हुए कहा, कहन लगे चिंता ना करो, ये मेरा पुत्र है, मैं अपने पुत दा रिश्ता तुहाडी धी नाल कर दिता है, इहदी बरादरी अज तो भला बरादरी है, जिथे ये होवेगा उत्थे मेरा वासा होवेगा, ये रहिंदी दुनिया तक इनू लोग याद रखणगे, ते सब तो पहला तुहाडी धी दा नां आया करेगा, बाद दे विच इहदा नां आया करेगा। वो प्रेमे कोड़ी नूं 22 मंजियां दे विचों मंजी बख्शिश कीती, ते पहला नां आउंदा है उहदी घरवाली दा मत्थो, ते फिर दूजा नां आउंदा है मुरारी, जिहड़ा प्रेमे कोड़ी दा नां मुड़ के मुरारी रखिया सी। कहंदे उन्हां दा नाम मत्थो मुरारी, मत्थो उहदी घरवाली दा ते मुरारी प्रेमे कोड़ी दा। ते जिहड़ियां 22 मंजियां बनाईयां गुरु अमरदास महाराज जी ने, उन्हां 22 मंजियां दे विच एक मंजी दी बख्शिश कीती इन्हां दोवां पति पत्नी नूं, जिहदा नाम सी मत्थो मुरारी। गुरु रोग कटदा है, पर सिखो इक्को गल है, जे उहदी बख्शिश दे पात्र बन जाइए। बाणी दा एक बचन आउंदा है, अम्या दृष्ट शुभ करै, हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सभै बल, सदा सुख मन वसै, दुख संसारै खोवै, गुर नव निध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। गुरु वो दरिया है जिहड़ा जन्मां जन्मांतरां दी कालख नूं धो के रख दिंदा एक छिन दे विच। ते घबराया ना करो, चिंता ना करया करो। जे 100 साल तो मान लो किसी कमरे का दरवाजा बंद है, तो कोई कवे कि इस दरवाजे का, इस कमरे का हनेरा कदे दूर नहीं होना, ओदी अज्ञानता बोलती पई है। तू उस दरवाजे का लॉक खोल, दरवाजा खोल के वेख, 100 सालों का हनेरा एक छिन दे विच दूर हो जाएगा जो उहदे अंदर लाइट प्रवेश कर जाती। तुहाडा जीवन चाहे 40 साल गुजर गया, 50 साल गुजर गया, 60 साल गुजर गया, घबराया ना करो। जिस दिन गुरु की बख्शिश के पात्र बन गए, उस दिन सारे जीवन के धोने धुप जाने। जिस दिन गुरु ने अपने हिरदे दे नाल ला लिया, उस दिन बख्शिशां रहमतां हो जानियां ने। बस इक्को गल है कि गुरु का सिख गुरु का हो के विचरे, गुरु का सिख गुरु वाल नूं मुख करके चले, गुरु का सिख बाणी पढ़े, गुरु का सिख सहज पाठ करे, गुरु का सिख सेवा करे, जिहड़ी सेवा धन गुरु अमरदास महाराज ने की। ते उस सेवा दे विच मंग कोई ना होवे। जिथे मंग कोई नहीं ना हुंदी, उत्थे गुरु आप त्रुटदा है, बख्शिश करदा है। जे मंगना हुंदा है, मंगया करो कि परमात्मा मैनूं सिੱਖੀ दान दे दे, नाम दी दात दे दे, बंदगी दे दे, सिमरन दे दे। इत्थे कोई आउंदा है कहंदा मेरे धी दा रिश्ता हो जाए, कोई कहता है मेरे पुत पास हो जाए। जो पास हो जाता है मुड़ के नौकरियां मंगण लग पैंदे हैं, मुड़ के हुण अगे मेरे पुत का बिजनेस सैट हो जाए। सारी उम्र धियां पुत्रां लई मंगी जाते हैं, अपने आप लिए कुछ मंगते नहीं। अपने आप लिए मंगया करो सिੱਖੀ दान, नाम दान, अमृत की दात गुरु घरों मिल जाए। धियां पुत्रां लई भी ये मंगया करो, पातशाह मेरे पुत्र नूं सिੱਖੀ की दात दे दे, अमृत की दात दे दे। ये कोई विरला वांझा मंगदा जे करोड़ां च, हर कोई नहीं मंगदा। मेरा गुरु कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद समूह संगत दा। सेवा भावना दे नाल करया करो।
सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्नै, ਜਾਂ सतगुर का मन मन्निया ਤਾਂ पाप ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ। ਕੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਅੱਖ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।